Okay, so yesterday we studied about gait of an earthworm. Gait means the way of moving, the style of movement, चाल जिसे हम कहते हैं. So how an earthworm moves we studied yesterday. Now we will study about the next organism, that is snail. Snail. You must have seen a snail during rainy season. They are more found in hilly areas, but they are also found in plains. And there are various varieties of snails. Some are small, some are quite big. So in hilly areas, the bigger snails are found. In plains, only small snails are seen. So, okay, let us see the snail. Now, have you seen a snail? And have you seen how it moves? So its movement, you must have noticed that it is somewhat similar to the movement of a earthworm. Okay, it also slides, pulling its body front and back, just like the earthworm. Okay. Now, a snail, you must have seen a snail. You must have seen there is a spherical ball-like structure, or more like a spiral on the middle part of it. ठीक है, you must have seen उठा हुआ गोल जैसा कवर, हाँ, पीठ पर रहता है. That is called a shell. उसका कवर होता है, actually it is shell. हाँ, many animals have shells which, yes, many animals have shells on their backs which acts as a protection from the enemy. It acts as a protection. So yes, cubed is hump, MP. हाँ, किसी का भी कुबड़ हो तो इंसान का हंच भी कहते हैं, HUNCH, या हंच बैक कहते हैं कुबड़े आदमी को, NCH. हंच बैक कहते हैं कुबड़े आदमी को. BACK, हाँ. Yes, there was a very famous novel, The Hunchback of Notre Dame. Anyway, hump इंसान में भी जानवरों में भी. So, if you have seen a snail, you see that there is a spherical structure in the middle part of it. This is called the shell, and it is the outer skeleton of snail. ठीक है, एक तरह से ये भी उसके लिए skeleton का काम करता है, snail के लिए. Okay, it acts as a skeleton, but it is not made of bones. इसमें हड्डियां नहीं होती. Okay, हाँ, नहीं, it is not made of bones, but still it is the skeleton, because it provides the framework to its body. It provides a structure, a rigid structure to its body, and the shell, it doesn't help in moving. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो शेल है किसी तरह से इसको मूव करने में हेल्प करता है. As I told you, it acts like a protective cover. When it senses an enemy near it, it rolls itself and goes inside its shell. It rolls contracts its body, makes it like a circular, and goes inside its shell, and it just becomes like a spherical ball. If you kick it, it will just roll down like a ball. But even if you kick it, it doesn't affect the snail. Okay,
It is because its shell is quite hard, not very hard, but yes, enough to protect it from small jerks or bounces. So the shell, it is a natural protection given to the snail and many such animals. Okay. Similarly, next organism, we just need to know. We don't have to know much. Just have to know what is a snail and what is the role of its shell. The shell is its protective. It is a skeleton. You have to remember, it is the skeleton, but it is not made of bones, and it just acts like a protective covering in case of danger. तो स्केलेटन जरूरी नहीं है कि जिन जानवर, अब उसमें बोन ही नहीं होता है तो बोन कहाँ से बनेगा? जिनमें बोन होता है तो उसमें बोन का बना होता है, जिनमें बोन नहीं होता है तो वो दूसरे मटेरियल का बना होता है, सिंपल कैल्शियम का बना होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म. ओके, सो skeleton is the word skeleton, remember it, the word skeleton, it is not specific to human beings. Skeleton is found in many, almost 50% of all the organisms, so they have skeletons. Everywhere it is not always bones. तो जिन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स में बोन होता है तो उसमें बोनी स्केलेटन होता है, बोन से बना हुआ होता है, और जिनमें बोन नहीं होता है तो अदरवाइज दूसरी चीज़ों का बना होता है. स्केलेटन हम ऐसी एक ढांचे को कहते हैं जो शरीर को एक रिजिड आकार देता है, एक स्ट्रक्चर देता है. अंडरस्टूड? यस. नाउ सिमिलरली you have seen a cockroach. Next organism is cockroach. Cockroach. You must have seen a cockroach walking and climbing. It also flies a little. Cockroach, it can fly for very small distances, about a feet or so. It can also fly for a very small distance. So it has 3 pairs of legs. Okay, just write one line under cockroach heading. You have to remember at least how many legs it has. तो पूछ दिया कि cockroach has how many legs, तो वो आप जो है गलत करते हैं. Just make a small heading cockroach. COCKROACH. Okay, right. Cockroaches walk and climb as well as fly. Walk and climb As well as fly in air. Full stop. They have 3 pairs of legs. Three pairs of legs. Three pairs of legs which help it in walking. Full stop. The body is covered with a hard outer skeleton
with a hard outer skeleton. Full stop. This outer skeleton is made of number of plates joined together. So number is specific. ठीक है, Plates क्या होते हैं? joined together which permits movement, फुल स्टॉप। देखिए, प्लेट कोई भी पतली चीज जो एक समतल हो उसको प्लेट कहा जाता है। तो आपने कॉकरोच को देखा होगा तो ऊपर उसके बॉडी में देखते हैं पतले पतले ब्राउन कलर के जैसे प्लास्टिक के जैसे है ना, उसका बॉडी के ऊपर ढका रहता है, शीट टाइप का रहता है, एक के ऊपर एक पतला पतला, वही उसका स्केलेटन होता है। ऊपर का परत होता है। हाँ हाँ, पीठ ऊपर जो, हाँ एक तो दो तो उसके वो होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं पंख जैसे, वो ऊपर है। उसके नीचे आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्लेट जैसा एक दो परत होता है और गोल सा उसका आकार होता है, तो वही उसका स्केलेटन होता है। ओके, तो ये पीठ पर के जो हम है उसी हाँ हाँ हाँ, प्लेट Full stop. प्लेट को कहेंगे। हाँ, मूवमेंट, फुल स्टॉप लिखेंगे। देयर आर टू pairs of wings attached to the body behind head. बिहाइंड हेड। तो देखिए उसका विंग्स अगर आप नोटिस किए होंगे तो दो पेयर होता है, एक आगे बड़ा होता है, एक और नीचे छोटा पेयर होता है। हाँ, बिहाइंड हेड, फुल स्टॉप। The cockroaches have distinct muscles. The cockroaches have distinct muscles. NCT. Distinct muscles dash Muscle. dash those near the legs move the legs for walking. Near the legs, move the legs for walking. Full stop. The body muscles move the wings when cockroach fly. Fly खत्म हो जाएगा, वही लिख दीजिए फ्लाई, फुल स्टॉप। ठीक है, तो कॉकरोच का आपने क्या क्या जाना फैक्ट, कि आउटर स्केलेटन होता है जो कि प्लेट्स का बना होता है, इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ओके,
it has 2 pairs of wings, it walks, it climbs, it flies, ठीक है। और इसके मसल्स होते हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। पैरों के पास जो मसल होते हैं वो पैरों को मूव करते हैं, चलने में मदद करते हैं, और जो बॉडी में मसल्स होते हैं वो इसको पंखों को उड़ने में मदद करते हैं। हाँ, अलग अलग। इतना ही आपको जानना है कॉकरोच के बारे में। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज बर्ड्स। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बर्ड्स। अक्सर पूछा जाता है ये सब, थोड़ा थोड़ा एक एक फैक्ट, क्योंकि एमसीक्यू है, एक छोटा फैक्ट से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। यस, और ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बायोलॉजी में। डेफिनेटली डेफिनेटली इससे बाहर नहीं आए। बर्ड्स, राइट। बर्ड्स और फिश से तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है, ह्यूमन बींग्स के बाद पूछेगा तो बर्ड्स या फिश। बर्ड्स, राइट। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर अच्छा, बर्ड्स क्यों उड़ पाते हैं? कुछ बेसिक जानते हैं इस बारे में? क्यों उड़ पाते हैं बर्ड्स? हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं? नहीं, विंग्स की वजह। आपको विंग्स लगा दिया जाएगा तो उड़ जाएंगे, उड़ पाएंगे? पतला लेग? नहीं, लेग पतला होना कोई खास रीजन नहीं है। बर्ड्स क्यों उड़ पाते हैं? देखिए, बर्ड्स के उड़ने के पीछे कारण है कि उनका जो बॉडी वेट होता है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, और उसका कारण है कि उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, जो हड्डियां होती हैं। हाँ, देखिए, आपके हमारे बॉडी में जो मेन वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? बोन्स की वजह से होता है, ठीक है। बोन्स वही जो है सबसे हार्ड पार्ट और डेंस, सबसे घने, सबसे ज़्यादा वेट वाले चीज़ें होती हैं। तो बर्ड्स जो है उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। हम लोग में बिल्कुल सॉलिड होता है, तोड़िएगा टूटेगा नहीं। और चिड़िया की हड्डियों को क्या है, आप आसानी से चबा भी जाइएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं। तो दे आर हॉलो एंड वेरी सॉफ्ट, दैट इज वाई देयर वेट इज लेस, सो दे कैन इजिली फ्लाई, ठीक है। नहीं, लेग से कोई रीज़न नहीं है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ देयर हाँ बोन्स, और उनके बॉडी में हॉलो स्पेस होता है ज़्यादा, तो इसकी वजह से उनका डेंसिटी कम हो जाता है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और वही जो है, जैसे ये मुर्गे और ऐसे जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो ज़मीन पर रहते हैं, ये ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं क्योंकि इनके बोन्स थोड़े सॉलिड होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, तो ये अपने वेट को ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं कैरी कर सकते, इतना इनको ताकत नहीं होती, ठीक है। तो इसके कारण वो ज़मीन पर ही ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा बहुत। चलिए आइए, अभी आएगा आगे। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। Full stop. Some birds like ducks and swans, yes, ducks and swans also swim in water. Yes, also swim in water. Full stop. The birds can fly because
their bodies, their body is well suited for flying, well suited, SUITED, suited मतलब उपयुक्त होता है, उपयुक्त, उचित, उपयुक्त ज़्यादा बढ़िया। पर्याप्त नहीं, उपयुक्त का मतलब यूजफुल, लायक। यस यस, सुटेबल, suited for flying, full stop. Their bones are hollow, bones are hollow and light, full stop. खोखला भी होता है और हल्का भी होता है, दोनों होता है। फुल स्टॉप। खोखला होगा तो हल्का हो ही जाएगा ना, कोई चीज सॉलिड रहेगा तो भारी होगा, खोखला होगा तो हल्का हो जाएगा। फुल स्टॉप। द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स, हाइंड यानी पिछला, लिम्स का मतलब पैर, हाथ पैर दोनों को लिम्स कहते हैं। हाइंड लिम्स, हाँ, हाइंड मतलब पिछला। पिछला पैर, तो हाथ को भी लिफ्ट करेंगे, हाथ पैर। एक्चुअली हाँ, जो भी इस तरह से निकला रहता है बॉडी से उसको लिम्स कहा जाता है। अब हाथ पैर अलग नहीं होते, हम लोग दो पैर पर खड़े होकर चलने लग गए और तो हमारा हाथ पैर अलग हो गया, नहीं तो जानवर पहले जब चार पैर चलता था तो चारों उसके एक ही जैसे होते थे। The bones of the hind limbs are typical for walking and perching, walking and perching। पर्चिंग क्या होता है? कहने का मतलब है कि इसके जो हाइंड लिम्स यानी पैर होते हैं एक तरह से, अगर जिनमें हाथ दो चार पैर होते हैं, नहीं तो दो होते हैं तो फिर वही, तो वो इस तरह की उनकी हड्डियां बनी होती हैं कि वो चल भी सकते हैं आसानी से। और पर्च, पर्च करना मतलब क्या होता है? किसी डाल पर बैठना, किसी चीज पर बैठना। तो जब वो बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे ये देखिए डाल है तो उनके जो ये होते हैं दोनों तरफ से इसमें पकड़ लेते हैं, तो वो आसानी से बैठ जाते हैं, वो गिरेंगे नहीं जल्दी। तो ये जो मूवमेंट होता है इस तरह से बैठना, इसको कहते हैं पर्चिंग। बैठना लिख लीजिए। हाँ, बर्ड्स का जो है टिपिकल है कि वो दोनों तरफ के उसके जो है आपस में इस तरह से क्रॉस है। नहीं, टिपिकल मतलब उसी के लिए बना, तो इस तरह से उसके आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं कि वो जकड़ के जब बैठता है तो अपने आप वो आपस में जकड़ जाते हैं उसके पंजे जो हैं, और वो आसानी से बैठ सकता है किसी भी इस तरह की डाल पर या ऐसी चीज़ पर। तो उसमें उसको सुविधा होती है, उसी तरह से बने होते हैं उसकी हड्डियां जो हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है बैठने में, तो चल भी सकती है आराम से और बैठ भी सकती है उस तरह से पकड़। पर्चिंग उसको कहते हैं, बर्ड्स के बैठने के तरीके को पर्चिंग कहते हैं।
ठीक है, आगे लिखेंगे फुल स्टॉप। द बोनी पार्ट्स, द बोनी पार्ट्स, बोनी BONY यानी हड्डी वाले, द बोनी पार्ट्स ऑफ फोर लिम्स, FORE आगे के, FORELIMBS, फोर। हाँ देखिए, एक्चुअली चिड़ियों में भी 4 ही पैर होते हैं, लेकिन आगे के जो 2 पैर होते हैं वो पंख की तरह मॉडिफाई हो गए। ठीक है, जो पंख होते हैं वो एक्चुअली पैर थे पहले, ठीक है, वो भी उसके पैर ही थे, लेकिन जब वो उड़ने लगा धीरे धीरे तो वो पंख में बदल गया, पैर उसके मॉडिफाई हो गए। हाँ लिखिए, द बोनी पार्ट्स ऑफ फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, limbs are modified as wings. Full stop. The shoulder bones are strong. तो उसकी जो कंधे की हड्डियां होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, तो पंखों को उसको फड़फड़ाने में मदद करती है। हाँ, जिसके कारण वो उड़ पाता है, अपने आप को बैलेंस कर पाता है। ठीक है, लाइट सब जगह कट रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ, यहाँ भी परेशान हुए। यहाँ रात में तो नहीं, लेकिन मतलब उसके पहले 10 बजे के पहले तक जो है कई बार कटा था। हालत खराब की हुई गर्मी। स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। द ब्रेस्ट बोन्स, फुल स्टॉप, यानी सीने की हड्डियां। द ब्रेस्ट बोन्स एक ही साथ है। चेस्ट जो है, चूंकि एनिमल्स में सब में ब्रेस्ट ही यूज किया जाता है, ठीक है, सिर्फ मनुष्यों में चेस्ट यूज किया जाता है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड to hold muscles of flight, उड़ने के जो GHT, which are used to move the wings up and down. The wings up and down. देखिए, पहले जो है 15th सेंचुरी और उससे पहले ब्रेस्ट ही वर्ड यूज होता था सीने के लिए। हर मनुष्य, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, किसी के लिए भी। फिर धीरे धीरे मनुष्यों के लिए हो गया, मेल्स के लिए चेस्ट हो गया, फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट, और जानवरों में सबके लिए ब्रेस्ट ही यूज होता है। तो धीरे धीरे मॉडिफाई, बट बेसिकली ब्रेस्ट मीन्स दिस रीजन, चेस्ट रीजन ऑफ एनी एनिमल। हाँ, आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज फिश। तो आप, अच्छा, इसमें एक खाली ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं, नीचे यहाँ लिख लीजिए न्यूमैटिक। इनके बोन्स को कहा जाता है न्यूमैटिक बोन। मान लीजिए टर्म पूछ दिया और आप लोग को पता नहीं चला क्या है। इनके बोन्स को कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स। ब्रैकेट में खाली लिख लीजिए, ये स्टार करके लिख लीजिए। बर्ड्स हैव न्यूमैटिक बोन्स। The bones of birds are called pneumatic bones. हवादार होते हैं, खोखले होते हैं, तो उनको न्यूमैटिक कहते हैं।
ठीक है, तो चिड़िया क्यों उड़ पाती है, तो आपको लिखा मिलेगा बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ, एक ऑप्शन हो जाएगा न्यूमेटिक बोन्स। पूरा नहीं लिखेगा कि बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उसकी जगह एक शब्द लिख देगा न्यूमेटिक। तो न्यूमेटिक का मतलब होता है हॉलो एंड लाइट। तो ये टर्म है, अब पूछ दिया तो पता नहीं बच्चे सोचेंगे अब ये क्या आ गया टर्म भाई, ठीक है। तो बर्ड्स का मतलब ही है न्यूमेटिक बोन्स, इसी कारण वो उड़ पाते हैं। तो एक टर्म है, जान लीजिए। हाँ यस, न्यूमेटिक बोन्स। ओके, आगे नेक्स्ट है फिश। फिश, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ फिश। आप बचपन में नाव बनाते होंगे कागज की, पेपर बोट बनाते होंगे, खेलते होंगे उससे पानी में, हम लोग भी खेला करते थे। तो उसमें क्या है कि जब हम पेपर की बोट बनाते हैं तो क्या है, उसका जो है इस तरह से मान लीजिए कि शेप बनाते हैं। एक तरफ जो है पॉइंटेड और शार्प होता है, बाकी चौड़ा हिस्सा होता है। तो अब इसको आप अगर पानी में डालते थे चलने के लिए, तो पानी में ये मान लीजिए कि ये बोट है इस तरह से, इस तरह से बोट है और पानी ऐसे बह रही है। तो पानी में आप ऐसे डालते थे तो अच्छे से बहती थी, या ऐसे डालते थे तो अच्छे से बहती थी? पानी ऐसे बह रही है, पानी में इसको आप ऐसे रखते थे कि ऐसे रखते थे? ऐसे रखते थे, है ना। यानी कि जो उसका शार्प एंड है वो पानी की धार के साथ होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में, तब वो अच्छे से मूव करता है। तो आप बोट्स के साथ खेलते हुए इस बात को क्लियरली समझ पाते हैं कि अगर उसके जो नैरो हिस्सा है उसको धार डायरेक्शन ऑफ द फ्लो के साथ रखेंगे तो अच्छे से वो बहता है, न कि उसके ब्रॉड हिस्से को अगर रखेंगे ऐसे तो वो फिर जो है बहता नहीं। समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि जो शेप होगा किसी चीज का, अगर अलोंग द डायरेक्शन वो इस तरह से होगा, उसके इसमें शेप होगा उसके डायरेक्शन में, तो वो इजीली फ्लो करेगा। अगर उसके उल्टे, अगर ऐसे होगा, अगर शेप इस तरह से होगा और इसको आप पानी के धार में ऐसे छोड़िएगा तो बहेगा नहीं, बह पाता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइन यानी इन द लाइन ऑफ स्ट्रीम, धारा के प्रवाह में, धारा प्रवाह, स्ट्रीम लाइन इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम का मतलब धारा और लाइन का मतलब उसी दिशा में। तो जो बहाव है, जो धारा है, उसी के अगर दिशा में आप कोई चीज को रखते हैं तो वो ठीक से बहती है धार के साथ। अगर उससे गड़बड़ा के आप रखिएगा तो फिर वो बहती नहीं है, रुक जाती है, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, वो इधर उधर हो जाएगा, टूट जाएगा। सो यही जो है प्रिंसिपल हमारे फिश में भी उसके स्ट्रक्चर में होता है। उसकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन, देखिए पतली सी बिल्कुल होती है और इस तरह से एंगल डिजाइन होता है कि वो आसानी से धार के साथ बह जा सके, जिसके कारण वो अच्छे से तैर पाते हैं। ओके, राइट राइट। फिश, राइट। we have seen that the shape of a fish is similar to the shape of a boat. Full stop. The head and tail, the head and tail
of the fish, TAIL, tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. Dash, the body tapers, the body tapers, TAPERS, tapers at both ends, at both ends. टेपर का मतलब होता है पतला हो जाना. जैसे आपने फिश को देखा है, कैसा होता है उसका, इस तरह से होता है. ठीक है, इस तरह से होता है. तो क्या है, बीच में चौड़ा होता है और आगे मुंह पर और पीछे पूंछ पर क्या होता है, पतला होता चला जाता है. यहाँ चौड़ाई ज्यादा होती है, यहाँ बिल्कुल कम होती है. इसी को कहते हैं टेपरिंग. जो पतला होता चला जाता है इसको कहते हैं टेपरिंग. ठीक है, तो द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स. Full stop. This body shape full stop. This body shape is called streamlined. Is called streamlined, LINED. इसको कोट्स में अंडरलाइन करें. तो ये आपसे पूछा जाएगा कि द फिश कैन स्विम बिकॉज, तो उसमें ऑप्शन होगा देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड. ठीक है, यस. तैर नहीं पाएगा ठीक से, बहुत परेशानी होगी, लुढ़कता रहेगा. ठीक है, तो ये तो शेप की बात हुई, हालांकि उसके भी स्केलेटन में होता है, आगे देखते हैं. तो ये स्ट्रीमलाइन होने की वजह से क्या होता है कि उसको मिनिमम एफर्ट के साथ वो आसानी से तैर सकता है, यानी बहुत तेजी से तैर सकता है बिना ज़्यादा मेहनत किए. हम लोग का बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, तो हम लोग को तैरने में देखते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, थक जाते हैं तुरंत. और अगर मछली ऐसे थक जाए तो पता चला कि दिन भर लेटी रहेगी थकान से, तो दिन भर तैरती रहती है. क्यों? क्योंकि उसका बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बना होता है, जिससे कि उसको बिल्कुल न के बराबर एफर्ट लगाना पड़ता है. और हम लोग को जो है कह दिया जाए आधा घंटा तैर लीजिए, तो देखिए 5 मिनट में ही हालत खराब सबकी, जो अगर रेगुलर स्विमर नहीं होगा. क्योंकि हम लोग का बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है. तो जब हम लोग तैरते हैं, हाथ पैर को चलाते हैं, इस तरह से मूव करते हैं ताकि थोड़ा सा हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाए. इस तरह से मोशन करते हैं हाथ पैरों को.
हाँ आगे लिखेंगे। So streamline कहते हैं धावा, धावा के दिशा में। धारा प्रवाह कहते हैं या उसको लाइन को क्या कहेंगे? लाइन मतलब दिशा, एंगल जो है लाइन। धावा के दिशा, हम्म, धावा के दिशा में। Yes, sir. Yes, sir. The streamline. स्ट्रीमलाइन फुल स्टॉप। द शेप इज सच, द शेप is such that water can flow around it, water can flow around it easily, and allow the fish to move in water. तो मछली का जो बॉडी होता है, आकार होता है उसका, वो इस तरह का होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है कि जिससे उसके चारों तरफ पानी आसानी से मूव कर सके, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, रोक देगा मछली को। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, रोक देगा। तो इतना इस तरह का बॉडी बना होता है और चिकना होता है कि पानी आसानी से इधर उधर किसी भी डायरेक्शन से उसके चारों तरफ बह सकता है उसको, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो भी आसानी से पानी में मूव कर सकता है। समझ गए? फुल स्टॉप। द स्केलेटन ऑफ द, लिख लीजिए ब्रैकेट में, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन ड्यू टू स्ट्रीमलाइंड बॉडी। हम लोग का शरीर स्ट्रीमलाइन नहीं होता है तो पानी को बहने में फ्रिक्शन लगता है, तो पानी हमें रोक देता है, आसानी से हम बढ़ नहीं पाते हैं। मछली का शरीर इस तरह का होता है कि उसको कोई फ्रिक्शन नहीं। हाँ ब्रैकेट क्लोज, लिखे आगे फुल स्टॉप। द स्केलेटन ऑफ द फिश is covered with strong muscles फुल स्टॉप। मछली को तैरते हुए कभी देखे हैं? अगर देखे होंगे वीडियो में या सामने कहीं एक्वेरियम वगैरह में, तो क्या करती है, पहले अपने आगे के हिस्से को मोड़ती है और उसका पिछला जो पूंछ होता है वो दूसरी डायरेक्शन में मोड़ता है, इस तरह से तैरती है। समझ गए? देखें कभी ध्यान से, अगर देखे होंगे तो क्या करता है वो इस तरह से तैरता है, यानी पहले आगे वाले हिस्से को मोड़ेगा एक तरफ और उसकी पूंछ वाला हिस्सा थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। हाँ, फिर आगे जाएगा, ऐसे मुड़ेगा तो पीछे वाला इस तरह से ऐसे तैरती है तेजी से। ठीक है, हैं? लिख लीजिए, उसी तरह से होता है। हाँ फुल स्टॉप। मछली सोता है लेकिन उसको सोने के लिए आंख बंद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आंख बंद करने का कोई तरीका होता नहीं। ठीक है, उस हम लोग का है कि आंख इस तरह का झिल्ली है कि उसको हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उसका हमेशा खुला रहता है, वैसे ही सील रहता है। उसको बंद, झिल्ली होता है उसकी आंख, उसके झिल्ली के उस पर परमानेंट ट्रांसपेरेंट कवर टाइप का लगा रहता है। समझ गए? तो उसको बंद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है,
आराम से वैसे ही सो जाता है, ठीक है, हाँ लिखिए फुल स्टॉप। ड्यूरिंग स्विमिंग, ड्यूरिंग स्विमिंग डबल है वो। हाँ, कोई भी जानवर बिना सोए नहीं रह सकता है। काम करेगा तो आराम करेगा ही करेगा, लेकिन अब सोने का तरीका, कोई आंख बंद करके सोता है, कोई आंख खोला रख के सोता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट इज बेसिकली रिलैक्सेशन। हाँ, ड्यूरिंग स्विमिंग कॉमा मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी the front part of body curve to one side, curve to one side, और हाँ, and the tail swings to opposite side, and the tail swings to opposite side. स्विंग आई एस डब्ल्यू आई एन GS स्विंग। swings to opposite side. इसको क्या कहेंगे इस चाल को? सिंपल मछली की चाल होती है तैरने की। स्विमिंग, हाँ, opposite side, full stop. Then quickly the body and the tail curve to other side, to other side. हाँ, full stop. This creates a jerk and pushes the JERK, jerk, and pushes the body forward. फुल स्टॉप। तो मछली कैसे तैरती है? वो सिर्फ अपने बॉडी को मोड़ती है झटके से, आगे वाले को एक तरफ मोड़ी, पीछे वाले को दूसरी तरफ, फिर तुरंत आगे वाले को दूसरी तरफ और पीछे वाले को दूसरी तरफ। तो जब वो इस तरह से मोड़ती है तो उसको एक जर्क पैदा होता है पानी की वजह से, जो उसको हाँ आगे धकेलता है, और इस तरह से वो आगे आगे तैरती चली जाए, बढ़ती चली जाए। हाँ, बस वो ऐसे ऐसे अपना बॉडी को मोड़ता है पानी की वजह से, उस पर इसके कारण थ्रस्ट जनरेट होता है और आगे। कर्व नहीं, उससे उसका नाम कोई नहीं है अलग से। मोड़ना, मोड़ना और फुल स्टॉप। हाँ, ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स, लिखेंगे आगे। ए सीरीज ऑफ such jerks make the fish swim ahead. Swim ahead. Full stop. This is helped by
द फिन्स ऑफ द टेल, द फिन्स FINS, फिन्स ऑफ द टेल, तो उसके जो पूंछ होती है आप देखते हो उसे मदद करती है, पूंछ ज़्यादा ही उसकी मुड़ती है। फिन्स मतलब उसका जो पूंछ की तरह का हिस्सा होता है फैला हुआ, मतलब पूंछ नहीं कहेंगे, इस तरह से मछली में इस तरह से होता है ना, वो बगल में भी होता है और पीछे पूंछ में भी होता है, तो जो चौड़ा हिस्सा होता है, पतला और चौड़ा हिस्सा, उसको फिन कहते हैं। पूंछ जरूरी नहीं है, फिन का मतलब होता है, लिख लीजिए ब्रॉड पार्ट, ब्रॉड शेप। अब ये कहीं पर रहे, पूंछ में भी देखिए, मछली को आप देखें ना, उसके पूंछ में भी रहता है, पंख चौड़ा जैसा हिस्सा रहता है और बगल में भी रहता है। हाँ हाँ, सब फिन्स, हाँ फिन्स कहते हैं उसको। नहीं, गर्मी है, चिड़चिड़ा के पढ़ाने का भी मन नहीं होता है मन नहीं हो रहा था पढ़ाने का फिर किसी तरह नहीं, इरिटेशन हो जाता है, दिन भर ऐसा है कि एकदम जब तक रहिए अंदर रूम में तब तक तो ठीक है, बाहर निकलिए तो लगता है। कल इसका कर लीजिएगा, फर्स्ट 2 चैप्टर जो था आपका बायो का, फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड। केमिस्ट्री का आप कर लीजिएगा, एसिड बेस वाला जो चैप्टर था उसका कर लीजिएगा। ठीक ठीक, नहीं ठीक है, चलिए। होता है गर्मी छुट्टी, इसलिए हरासमेंट बॉडी पर भी तो स्ट्रेस पड़ता है ना, तो आदमी का थकान चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो गर्मी ऐसे ही परेशान किया। केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये कार्बन कंपाउंड के पहले आपको कराया था। हाँ, फुल स्टॉप। फिश ऑल्सो हैव, fish also have other fins, other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body. Balance of the body and to keep direction, while swimming. तो जो पूंछ में जो फिन्स होते हैं वो तो आपको इसको तेज़ी से तैरने में मदद करते हैं, बॉडी को तेज़ी से स्विंग करते हैं, तो ज़्यादा वाटर का थ्रस्ट मिलता है। और जो पीठ पर जो होते हैं फिन्स, वो इसको क्या है कि एक तो बैलेंस करने में अपने बॉडी को मदद करते हैं, नहीं तो उल्टा पुल्टा घूमने लगेगा, और दूसरा कि जब वो स्विम करता है तो उस समय उसको डायरेक्शन मेंटेन करने में मदद करते हैं, किस डायरेक्शन में उसे स्विम करना है उसमें ये मदद करते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कि जो डाइवर्स वगैरह होते हैं, तो वो देखते हैं जब अंडर सी डाइवर्स होते हैं तो अपने पैरों में भी फिन्स टाइप का लगाते हैं, तो वो उनको इजीली तैरने में मदद करता है। हाँ, चलिए, तो ये हो गए फिश के बारे में। हाँ,
नेक्स्ट है स्नेक्स। तो फिश का आपको यही पूछा जाएगा, फिश क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। उनके फिन्स जो होते हैं उनको तैरने में मदद करते हैं। कैसे तैरता है? तो अपना आगे पार्ट को एक डायरेक्शन में मूव करता है, पिछले हिस्से को दूसरे डायरेक्शन में, फिर क्विकली डायरेक्शन चेंज करता है। इससे उसको थ्रस्ट पैदा होता है, आगे बढ़ता जाता है। पीछे पूंछ पूंछ हाँ हम्म। इतना तेज हवा चल रहा था कि हाँ कितना भी एक्सीलरेट कर रहे हैं रोक दे पूरा रहा हूँ। बैलेंस ही हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा था एक्सीलरेट। बहुत तेज हवा कल चल रही, अभी भी चल रही है ठीक ठाक। हाँ, तो ये आपके जो टेल का फिन्स होता है ये आपको उसको स्पीड देने में मदद करता है, तेज़ी से तैरने में मदद करता है। और जो पीठ पर जो होते हैं फिन्स होते हैं, ये जो है उसको एक तो डायरेक्शन मेंटेन करने में स्विमिंग के दौरान, और अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये जो है यही बातें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट इज स्नेक। लिखिए, snakes have a long backbone. Snakes have a long backbone. जितना लंबा सांप होता है लगभग उतना ही लंबा उसका बैकबोन भी होता है, ठीक है। जितना लंबा, अगर 7 फीट का है तो 7 फीट का उसका बैकबोन, पूरा शुरू से लेके अंत तक। यस, हर जानवर, फुल स्टॉप। नहीं, एनाकोंडा ही होते हैं बड़े, फुल स्टॉप। दे हैव मेनी थिन मसल्स। दे हैव मेनी थिन मसल्स। नाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाग को कोबरा कहते हैं। हाँ, कोबरा। तो किंग कोबरा को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आपने पूछा इसलिए। और गेहुआ सांप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गेहुअन्स, तो कंफ्यूजन है। हाँ, गेहुअन सांप। कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। इसमें का टॉपिक आया तो दिमाग पे आ गया। देखिए, स्नेक जो है एक्चुअली साइंस में अगर कहिएगा तो उसका फैमिली है नाजा। नाजा लिखते हैं। तो नाजा तो होम्योपैथिक मेडिसिन सांप का मारने का दवा है नाजा। इसलिए क्योंकि उससे निकाला जाता है। हाँ, उसी से। देखिए, होम्योपैथी का फिलॉसफी है कि जहर ही जहर को काटता है, तो जहर को वो जहर ही से ट्रीट करते हैं। तो सांप का जहर के लिए ट्रीटमेंट भी सांप का जहर ही होता है, ठीक है। तो नाजा एक फैमिली है, और इसमें जो नाजा नाजा कहते हैं, जो इंडियन कोबरा है, ठीक है, इंडियन कोबरा यानी कि जो नाग जिसे आप कह रहे हैं वो नाजा नाजा है। और जो आप किंग कोबरा कह रहे हैं, तो किंग कोबरा क्या है कि यही है, ठीक है। उसका कोई अलग वैरायटी नहीं है किंग कोबरा, उसी का एक मतलब कि जैसे बड़ा सांप है, समझ गए। नाग में ही जो बहुत पुराना बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, तो उसको हम किंग कोबरा कह देते हैं। कोई अलग वैरायटी नहीं है वो, नाग का विशेष रूप है। हाँ, कोबरा ही है, नाग ही है। लेकिन कुछ नाग जिनकी उम्र काफ़ी समय हो जाती है और बड़े बहुत ज़्यादा विशाल वो हो जाते हैं, तो जैसे होता है ना कि जैसे देखिए, कुत्ते किसी एरिया में बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, कहीं छोटे कुत्ते पाए जाते हैं, समझ गया। होता तो कुत्ता ही है, लेकिन पहाड़ों में आप जाइएगा तो बड़े बड़े खूब झबरीले बाल वाले बड़े कुत्ते दिखेंगे आपको। कहीं जाइएगा तो दम छोटे छोटे लगेगा कि बिल्ली की शेप के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो उसी तरह किंग कोबरा कोई अलग वैरायटी नहीं है, उसी में उसका सिर्फ बड़ा सैंपल है, नाग का ही। कोबरा मतलब नाग हो गया। नाग हो गया। कोबरा मतलब नाग हो गया। कोबरा मतलब नाग का ही बड़ा फॉर्म है। हाँ हाँ। गेहुआ को क्या कहेंगे?
गेहून अलग होता है। गेहून जो हम कहते हैं वो इंडियन वाइपर कहते हैं उसको। वाइपर हो गया गेहूं हो गया। हाँ, इंडियन वाइपर। वाइपर बहुत वैरायटी होता है, रशियन वाइपर होता है, सी वाइपर होता है, इंडियन वाइपर। तो बहुत जहरीला होता है। हाँ, अच्छा जहरीला होता है। बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। बहुत ज़्यादा जहरीला नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा जहरीला में होता है, मीडियम। अगर सबको किंग कोबरा और ये दोनों में सबसे जहर नहीं, किंग कोबरा का तो बहुत ही खतरनाक जहर होता है, तो हाथी को पट से मार देता है, हाथी को गिरा देगा उसका जहर पट से, इतना जहर उसका ताकतवर होता है। हाथी हाथी को हाँ, हाथी को भी डस लिया तो कुछ मिनट में हाथी भी मर जाएगा। ठीक है, तो जहर जो है वो आपको बताए थे कि कितना तेजी से काम करता है, उसके ऊपर उसका ये होता है कि कितना तेजी से काम करता है। और किंग कोबरा का देखिए खासियत क्यों है, क्योंकि किंग कोबरा में एक ये होती है कि ये अपने 3/4 या इनफैक्ट 4/5 हाइट तक खड़ा हो जाता है, फन खड़ा कर लेता है। किंग कोबरा को हम देखे थे सर, वो हाँ। ये जो कैप्टन कौन है खेल रहा था, हाँ। उन्होंने पूरा हाँ। केजू में हाँ। तो किंग कोबरा का बगल में ग्रीन कलर का एनाकोंडा था। हाँ, एनाकोंडा पूरा आपस में तो जैसे कि किंग कोबरा अगर 5 फीट का है, बहुत नहीं, बहुत लोग 15 फीट हाँ, का नहीं बता रहे एग्जाम्पल कि अगर 5 फीट का है बच्चा बन गया। तो 4 फीट तक वो अपना ऊपर उठा लेगा बॉडी को। तो किंग कोबरा मतलब क्या होता है, हाथी के बराबर भी ऊंचा खड़ा हो जाता है, समझ गए, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होता है। हाँ, हाथी का ऊंचाई मान लीजिए 8 फीट 10 फीट, उससे भी बड़ा होता है। उससे भी नहीं, उससे उतना खड़ा हो जाता है वो जमीन से ऊपर, अपने फन को खड़ा कर लेता है उतनी ऊंचाई तक। तो इसलिए, और दूसरी बात है बहुत रैपिड होता है, ये बहुत क्विकली काट लेता है, 10 के मतलब 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में आपको काट के आ जाएगा वापस। पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत स्विफ्ट होता है, इसकी वजह से इसको खतरनाक, और इसके बॉडी में बहुत ताकत भी होता है, शेर वेर को भी लपेट लेता है, बांध लेता है। तो इसकी वजह से किंग कोबरा खतरनाक कहा, क्योंकि एक तो ये बहुत तेज फुर्तीला बहुत होता है, पता नहीं रहा। हाँ, और गुस्सैल बहुत होता है, इट इज़ वेरी विशियस। गुस्सैल, तुरंत इसको गुस्सा चढ़ जाएगा तो फिर मार डालेगा जो रहेगा सामने, कोई भी जानवर उससे शेर से लड़ जाएगा, कोई भी जानवर है, हाँ, कोई भी जानवर है लड़ जाता है। मगरमच्छ को अगर जगा लिया तो उसको नहीं छोड़ेगा। मगरमच्छ को, लेकिन मगरमच्छ में भी बहुत ताकत होती है, उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है, उसको है, हाँ, डस लेगा तो डसने में भी क्या कि उसका ऊपर बॉडी में डसना भी मुश्किल है, क्योंकि उसका ऊपर बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है, उससे बुलेट प्रूफ आपका बनाया जाता है जैकेट भी। तो अगर, लेकिन हाँ, कहीं अगर डस लिया तो फिर उसका वो चल जाएगा, मर जाएगा। ऊपर उसको डस नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है अपर का पार्ट जो होता है मगरमच्छ का। तो हाँ, हाँ, कहीं अगर मुलायम जगह पर उसने डस लिया तो फिर वो मर जाएगा डेफिनेटली। तो इसका जहर एक तो तेज बहुत होता है, तुरंत ब्रेन को ही वो कर देता है, जकड़ के मार देता है, बहुत तेजी से फैलता है, जल्दी नहीं पा, हाँ, ये शांत जब बीहड़ जंगल वगैरह में ही रहता है, ह्यूमंस के या जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ नहीं रहता है, जनरली शांति पसंद है, अलग रहता है, और हॉट दलदली जगहों के आसपास रहता है। हॉट गेहून, हाँ, गेहून भी रहता है, तो शांति वो भी आपको अलग रहेगा, जहाँ आदमी लोग आते जाते रहेंगे जल्दी वहाँ नहीं रहेगा, जहाँ जो कोई आता जाता नहीं हो, मकान का कोई हिस्सा है जो बंद पड़ा हुआ है, उधर कोई जाता नहीं है, तो वहाँ वो अपना कहीं घर बना के रहेगा आराम से। ठीक है, लाइफ कुछ मतलब 2-3 साल से लेके जनरली 12-13 साल तक रहता है, और कुछ जैसे ये सब का है लंबा भी रहता है, 60-60 साल और 100-100 साल तक भी होता है। ठीक है, तो जितना इंडियन वाइफ, हाँ, they have many thin muscles, full stop, they are connected to each other,
लिख एक्चुअली देखिए उसमें क्या है कंफ्यूजन, जैसे एक हमारे यहाँ करैत होता है, करैत सांप एक होता है, हाँ करैत होता है, एक नाग हो गया, हाँ ये होता है आपके गेहूं जिसे कहते हैं नाग, हाँ 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 डार्क ब्राउन या ब्लैक रहता है। और ये जो हो गया तो ये जो आप ये कह रहे हैं गेहूं, तो ये इंडिया का ही एक स्पेशल वैरायटी, ये जो है इंडिया का ही स्पेशल वैरायटी है, तो इसलिए कई बार उसका साइंटिफिक नाम हर जगह नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जगह नहीं पाया जाता है। ये वैरायटी सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, इंडिया और इसके आसपास जो एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ हाँ जहाँ उसका अकॉर्डिंग जोग्राफी होगा, वैसा मिट्टी होगा, वैसा टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये सब जोग्राफी से जुड़े हुए हैं। जैसा उनके लायक ज़मीन होगा, मिट्टी होगा, पानी हवा पानी होगा, वहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे एक डेजर्ट वाइपर भी होता है, डेजर्ट में पाया जाने वाला वैरायटी होता है, हाँ सी वाइपर होता है, रसेल्स वाइपर होता है। वाइपर काफ़ी ब्रॉड फैमिली है, तो उसमें जो है हमारा ये इंडियन वाइपर होता है। चलिए हाँ आगे क्या है, इंडियन क्रैट कहते हैं उसको, KRAIT, हाँ क्रैट। पूंछ से डसने वाला उसका नाम, हाँ नहीं आता है, ठीक बात है। पूंछ से डसने वाला एक तो नहीं, एक होता है जो वहाँ होता है US वगैरह में होता है, उसको कहते हैं रैटल स्नेक कहते हैं, हाँ रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है रैटल स्नेक, ठीक है। तो वो बड़ा खतरनाक होता है, उसका पूंछ में जो है और एक बड़ा ही अलग खड़खड़ाने का आवाज़ करता है, ठीक है, और पूंछ ऐसे खड़ा रहेगा उसका, और उसमें लगता है कि जैसे बाला टाइप का पहनाया हुआ है, और वो आपस में खड़खड़ आवाज़ पैदा करता है, हाँ तो वो जो है उसी अपने पूंछ से डसता है। तो एक तो रैटल स्नेक है बहुत फेमस पूंछ से डसने, और भी इंडिया में भी कई सांप हैं जो पूंछ से डसते हैं। चलिए अभी उसमें नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर even though they are far from one another. Far from one another. Full stop. Muscles also interconnect, interconnect the backbone, comma ribs and skin. फुल स्टॉप। हाँ रिब्स जैसे हम में होता है ना, जब बैकबोन के अगल बगल जो हड्डियां होती हैं, दिखाए थे ह्यूमन का जैसे रिब्स, वैसे इसमें भी रिब्स, बैकबोन लंबी है, उसके अगल बगल हड्डियां ऐसे 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 रिंग टाइप का रहता है, हाँ रिब्स। फुल स्टॉप। हाँ हाँ लिखेंगे द स्नेक्स बॉडी। अच्छा स्नेक को देखते हुए रेंगते हुए देखे होंगे, तो वो भी क्या है, वो भी इसी तरह मूव करता है अपने बॉडी को, आगे हिस्से को, मतलब उसमें क्या होता है कि उसका बॉडी कई कर्व्स में मूव करता है, जैसे इस तरह से रहेगा, तो पता चला फिर ये इसको फिर ऐसे मुड़ेगा, ऐसे इस तरह से मुड़ेगा, इस तरह से फिर ये
कई उसमें कर्व्स होते हैं और वो आगे इस तरह से भागता चला जाता है, ठीक है। तो वो उसके बॉडी में कई अलग अलग टर्न्स लेता है बॉडी, तो इस तरह से, है ना, तेजी से जाएगा। तो जैसे मछली है, मछली भी ऐसे ही तैरती है और सांप भी ऐसे ही बढ़ता है, लेकिन यह है कि मछली में एक ही खाली ऐसे होगा और इसमें सांप में कई टर्न्स उसके बॉडी में होते हैं। मोशन सेम तरह का होता है, लिखेंगे। कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है जिससे जहर बनता है, उसके बताएंगे वो उसका एसिड, उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, आर्सेनिक के कंपाउंड्स होते हैं जनरली, और एसिड नहीं उसमें, और क्योंकि वो तो मार ही देते हैं, ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। वो करता क्या है कि हमारे सेल्स को जो है तुरंत उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, उसका कंपाउंड बना देता है आयरन के साथ रिएक्ट करके, तो हमारे सेल्स जो हैं वो तेज़ी से डेड होना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है सीधे ब्रेन में जाके और ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है। तो अब जैसा जहर है, जो सांप है उसे, अगर हो सकता है आदमी अंधा होकर रह जाए, कोई अंग उसका डेड हो जाए तो वो काटना पड़ जाता है, और नहीं तो अगर तेज सांप का जहर रहा तो फिर मर जाता है आदमी, ठीक है। बहुत तेजी से फैलता है सेल्स में। हाँ, लिखेंगे। द स्किन, फुल स्टॉप। द स्नेक्स बॉडी, the snake's body curves into many loops, curves into many loops, loops, loop कहते हैं ऐसे जो है, हाँ, इसको लूप कहते हैं। loops, full stop. Each loop of the snake, each loop of the snake gives it a forward push, gives it a forward push by pressing against the ground. Forward push by pressing against the ground. ग्राउंड। तो जैसे मछली को कौन पुश देता है? पानी। सांप को पुश कौन देता है? थ्रस्ट, ग्राउंड। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। Since its long body, since its long body makes many loops, comma, and loops, and each loop gives it a push, comma, the snake moves very fast, and not in a straight line. Not in a
स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये इस तरह से लूप करता हुआ मूव करता है, ठीक है। मूवी को लूप करते हैं। नहीं, मूविंग को लूप नहीं, जो ये इस तरह का आकार बनाता है ना मोड़ के, इसको लूप कहते हैं। ये सब लूप हो गए, ये लूप हो गए, जो बेंड शेप बनाता है ये लूप हो गए। तो हर लूप जो है, देखिए अब इसके बॉडी में कितने, अभी आप देख रहे हैं कि इसके बॉडी में आपको 3-4 लूप दिख रहा है। तो हर लूप इसको पुश देता है। जब ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तो ये इसको आगे पुश करेगा, यहाँ से मुड़ेगा तो यहाँ पुश करेगा, ये पोड़ तो यहाँ और यहाँ यहाँ। तो इसकी वजह से बहुत तेजी से ये आगे भागता है। ठीक है, अब इस पर है तो एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, योगा, क्योंकि बॉडी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। लिखिए, एक स्पेशल टॉपिक है इसमें, ऐसे खत्म हो गया है आपका। हाँ, लिखिए, हेडिंग दे देंगे योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा डैश फॉर बेटर हेल्थ। लिखेंगे द यूनाइटेड नेशंस The United Nations declared 21 June declared RED declared 21 June as International Day of Yoga. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, फुल स्टॉप। 21 जून अंडरलाइन कर लेंगे और इसको कोट में डाल के अंडरलाइन करेंगे। ये आने वाला 21 है। हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को भी अंडरलाइन कर लेंगे। आपसे कभी भी जीके में पूछा जा सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब है, 21 जून, फुल स्टॉप। लिखिए, योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी full stop. It helps in keeping the backbone erect. It helps in keeping the backbone erect, ERECT, सीधा, कॉमा, यहाँ पे सीधा हाँ, यस तो सीधा और तना हुआ, दोनों हुआ, इरेक्ट, कॉमा, हाँ सीधा, कॉमा, इनेबलिंग यू या इनेबलिंग अस, लिख लीजिए, इनेबलिंग अस टू सिट स्ट्रेट and not slouch, and not slouch, SLOUCH, slouch मतलब झुक के बैठ, SLOUCH,
सी है, जी नहीं सी। SLOUCH, स्लाउच मतलब झुक के बैठना। हम लोग आगे ऐसे झुक जाते हैं बैठने में, हाँ ये आड़ा तिरछा हो जाते हैं तो झुक कर बैठना, स्लाउच। फुल स्टॉप। लिखेंगे मेनी पोस्चर्स इन योगा, पोस्चर्स POSTURES, पोस्चर्स मतलब कहते हैं मुद्रा, यानी किस तरह से हम बैठे हैं, खड़े हैं। मेनी पोस्चर्स इन योगा require us to lift our own weight, comma, which helps in making the bones strong, and keep away osteoporosis, OSTEOPOROSIS, osteoporosis ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिजीज ऑफ बोन्स। ओस्टियोपोरोसिस जो है कोई खास ये नहीं है। ओस्टियो जो है वो बोन्स का कहते हैं, ओस्टियो मतलब बोन्स, ग्रीक में ओस्टियो मतलब बोन, और पोरोसिस जो है पोर से बना है, पोर का मतलब होल्स, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बोन्स में जो है धीरे पतले महीन छेद होने लगते हैं, यानी वो हॉलो होने लगते हैं और कमज़ोर होने लगते हैं, तो आसानी से टूट जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ 40-45 का उम्र आएगा तो हड्डियां बहुत आसानी से टूटने लगती हैं कमज़ोर होकर, हाँ, तो इसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो जो लोग दूध वगैरह नहीं पीते हैं, कैल्शियम नहीं खाते हैं, धूप वगैरह में नहीं रहते हैं, तो उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, हॉलो होने लगती हैं और बड़ी आसानी से टूटने लगती हैं। तो इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नहीं, कैल्शियम सबसे ज्यादा कौन से चीज में ज्यादा होता है? दूध के ही प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा होता है, हाँ। बाकी आप जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जी, ये सब में भी होता है, अच्छा खासा होता है, दूध में होता है, क्योंकि गाय खाती है घास, घास में होता है कैल्शियम, उसको पचा के वो सारा कैल्शियम आपको दूध के रूप में दे देती है, ठीक है। तो इसलिए दूध और उसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। और भी चीज़ों में होता है, केला में भी होता है, ठीक है, फलों में होता है, लेकिन कम होता है, इतना नहीं होता है जितना दूध, हाँ। बोन्स, फुल स्टॉप। तो इससे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना वजन उठाते हैं, तो हड्डियां मजबूत होती है, तो उससे हमारे ऑस्टियोपोरोसिस हमारे शरीर में नहीं होता है बहुत समय तक, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो हेल्प्स in relieving joint pain, RELIEVING, relieving यानी राहत,
जॉइंट पेन्स, जोड़ों में दर्द से भी हमें बचाता है। राहत रिलीविंग हम्म, कॉमा जॉइंट पेन, कॉमा विच इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड, which is mostly observed in elderly people, in elderly, ELDERLY, बूढ़े लोग, बुजुर्ग, elderly people, full stop. It tunes TUNES, tunes, धुन नहीं, ट्यून्स का मतलब होता है बैलेंस करना, मिलाना, आपस में कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बिठाना, मिलाना भी, देखिए मिलाना भी कहते हैं कॉमन वे में, और शुद्ध हिंदी में तालमेल बिठाना कह सकते हैं। हाँ, इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी, all muscles in the body and keeps them active, and keeps them active. देखिए होता क्या है, मसल्स हमारे जो होते हैं, आपने कल पढ़ा, मसल्स का काम करना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना काम होता है, स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, फैलेंगे सिकुड़ेंगे, फैलेंगे सिकुड़ेंगे। अगर उनमें हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, रेगुलर वे में उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रिजिड होने लगते हैं, रिजिड होने लगते हैं। और उसके बाद आप पाएंगे कि आपको हाथ पैर जोड़ कोई चीज़ हिलाइएगा तो आपको तकलीफ महसूस होगा, आसानी से नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती कीजिएगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में, और फिर उसमें भी क्या होगा, फिर बहुत दिन तक ऐसे छोड़ दीजिएगा, नहीं करिएगा तो आपको अक्सर नस चढ़ जाएगा। आप कोई चीज़ खेलने की कोशिश करेंगे, होता क्या है कि वो अनबैलेंस एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अब है क्या कि उसको आदत नहीं है मूव करने का, बहुत दिन से आपने छोड़ दिया है उसको, अब अचानक उस पर स्ट्रेस डालिएगा तो क्या होगा, सही दिशा में एक्सपैंड करेगा नहीं, इधर उधर, तो फिर क्या होगा, दूसरे से जाके उलझ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि आपको नस चढ़ने की समस्या या नस कहते हैं कि उलझ जाना, कई कंडीशन होता है, तो ये सब समस्या होने लगती है। तो इसलिए मसल्स हम एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स हमारे एक्सपैंड होते हैं, तो उससे वो ट्यून्ड रहते हैं, यानी अपना उनका डायरेक्शन ठीक रहता है। हाँ, कीप्स देम एक्टिव, चुस्त दुरुस्त उसको रखता है, फुल स्टॉप। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी, देखिए बाहर से इसको बेचारे को ठंड लग रहा है तो आके यहाँ लेटा हुआ तब उसे अंदर देख रहे हैं, इसको आके देखिए लेटा हुआ, पैर वैर फैला के जमीन से, टाइल ठंडा रहता है थोड़ा, थोड़ा बाहर और टेम्परेचर से ठंडा रहता है। हाँ, इट कीप्स द हार्ट हेल्दी, सब यहीं आ जाओ तुम लोग, एक कम था फिर आ गया, जहाँ ये लोगों को ठंडा महसूस होता है घुस जाएगा जो। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक्स इट वर्क, more efficiently,
मोर एफिशिएंटली। तो हमारे हार्ट को भी जो है ये स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है और उसको ज़्यादा अच्छे से अपना काम करने में मदद करता है। हम एक्सरसाइज करते हैं कई तरह का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ऐसे भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, तेज़ी से पंप करता है, तो उससे क्या होता है कि इसके भी मसल्स बिल्कुल एक्टिव रहते हैं हार्ट के, और सारे हार्ट के जो पार्ट्स हैं, हर जगह के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली अपना काम करते हैं, तो उससे ये बिल्कुल हार्ट फिट रहता है। फुल स्टॉप। सर्टेन योगा पोस्चर्स RES, अरे भाई कहाँ हो गया, सर्टेन योगा पोस्चर्स बंद नहीं रख सकते हैं, और जहाँ खिड़की वगैरह खोले चला आता है। आइए, कोई बात नहीं। सर्टेन योगा पोस्चर्स शुड बी परफॉर्म्ड under the supervision of a trained person. नहीं, सुपरविजन और देख रेख। इसको भी तो आ सकते हैं सुपरविजन। नहीं वो सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन। चलिए, आज आपने एक नया एंगल दिया इसको, हम ऐसे नहीं सोचे थे कभी। हाँ, सुपरविजन नेचुरल वर्ड, सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन। फुल स्टॉप। यानी कि कुछ योगा के जो आसन वगैरह होते हैं उनको किसी जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनके देख रेख में ही करना चाहिए, नहीं तो उससे हमारे, अगर ठीक से नहीं करते हैं तो शरीर में हमारे कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है। ठीक है, तो उसको हमें, क्योंकि काफ़ी वो डिफ़िकल्ट होते हैं आसन, तो अपने से नहीं करना शुरू कर देना चाहिए बिना जानकारी या बिना किसी एक्सपर्ट के, तो उससे आपको कोई दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है, नसों में कहीं कुछ डैमेज हो सकता है अचानक से कर लेने से। तरीका होता है करने का हर चीज़ का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योगा। योगा का रोल क्या है, हमें तरह तरह के एक्सरसाइज कराता है बॉडी के, ताकि हमारे बॉडी के मसल्स जो हैं वो ट्यून्ड रहें, एक्टिव रहें, हमारे बॉडी पार्ट्स और ख़ासकर हमारा हार्ट ये हमेशा एफिशिएंटली काम करता रहे, और हड्डियों में भी इससे जो है इम्प्रूवमेंट होता है, तो हमारे हड्डियों की बीमारियां दूर रहती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ठीक है, और कुछ योगा के पोस्चर्स जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं, ट्रेंड पर्सन्स होते हैं, उनके देखरेख में करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया।